Okay, hello. So this is our last lecture. Officially, this is our last lecture. As we discussed earlier in the last lecture, ki, uh, there is only one program left, which is all about the structure using pointer. Okay, so we finish that program and we close our syllabus. और उसके बाद क्या करना है मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है? So let's back to the program where we left on the last lecture. ये program बाकी था, ठीक है? The program is all about the dynamic memory allocation of struct. Dynamic memory मतलब मैं randomly memory assign कर रहा हूँ using struct to pointer. Means using pointer हम लोग ये सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है? So see here, I am declaring two library files as stdio.h and ये है library function. हाँ, ये इसके बारे में कुछ ज़्यादा मत सोचो, बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस रहेंगे यहाँ पे उसके बारे में, ठीक है? So my first library function is standard input output and the second is standard library function. Okay, after that I am creating one struct named as person and adding one more parameter as name of the person. Age weight हम लोग ने ऑलरेडी ये प्रोग्राम में देख लिया था, ठीक है? एज और वेट. तो एक पैरामीटर ऐड किया मैंने. द साइज ऑफ नेम इज 30, मतलब मैं कैरेक्टर के तौर पे उसे ऐड कर रहा हूँ. दिस इज सॉरी एरे के तौर पे उसे ऐड कर रहा हूँ. ओके, so inside the main function I am calling the structure या फिर I am creating one variable as a pointer variable to that structure using this star operator. So person star ptr tells us that we are creating pointer variable using structure, and after this pointer variable I am creating two normal variables I or n. Those are not the pointer variable because there is no star in between them. Okay, after that I am simply printing one line and scanning the values for the line. So the line is enter the number of person, कितने person के लिए मुझे बनाना है, that's it. And scanning the value of line. So means in the front of this enter the number of person, I can write the number. I can write this 4 5 6 7 because of this scanf function. Okay, percentage d, and I am scanning the value of this percentage d. ठीक है? सो यहाँ पे देखो आउटपुट में दिखा था मैं साइमल्टेनियसली. सो यहाँ पे उन लोगों ने बोला है कि 2 पर्सन का हम लोग डेटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है? 2 उसने एंटर किया. ओके, सो नाउ सी द कमेंट. अलोकेटिंग मेमोरी फॉर एन नंबर्स ऑफ स्ट्रक्ट पर्सन. अभी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से तो हम लोग मेमोरी एलोकेट करने वाले हैं, ठीक है? सो वो मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग ने ये stdli भी लिखा, जिसके ये मैलॉक कैलॉक वगैरह फंक्शन है. देखते हैं वो क्या है मैलॉक कैलॉक. सो ptr इज इक्वल टू स्ट्रक्ट पर्सन स्टार. ptr is my pointer variable and I am calling this struct person star, means calling this entire structure person inside the ptr, then malloc function. अभी malloc function क्या होता है ना, ये मैं बोलता हूँ malloc. ओके, सो सी हियर, मुझे भी नहीं मालूम था malloc फंक्शन क्या है, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सब सारी चीजें मालूम ही रहनी चाहिए. ओके, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, या फिर दिस इज अगर पार्ट का सिलेबस का पार्ट भी होता है तो भी ऐसा नहीं है कि आपको सब चीजें मालूम रहनी चाहिए, ठीक है? इफ यू आर इन डाउट then go to the google is your closest friend. So search, I have searched here what is malloc in C. So the google tells us that, our best friend tells us that malloc or memory allocation. malloc हम लोग फुल फॉर्म क्या है उसका, मेमोरी allocation. So this method, क्योंकि हम लोग ने उसे यहाँ पे एक मेथड के तौर पे यूज किया है, देखो मेथड के तौर पे यूज किया है. सो दिस मेथड in C is used to dynamically allocate a single large block of memory. Clear? I am repeating the sentence one more time. It is used to dynamically allocate a single large block of memory. क्या कर रहा है वो? Dynamically मतलब static मतलब क्या, एक ही जगह पे वो स्टोर हुआ है. Dynamically मतलब it will be changed. We can change this momentum. So dynamically allocate, मैं change कर सकता हूँ allocation of a single large block of memory, एक large block of memory को with a specified size, ठीक है? with जो साइज बोली होगी वो साइज में, ठीक है? सो बैक टू अवर प्रोग्राम. नाउ दिस टेल्स अस दैट malloc n into n क्या है, जो नंबर है, इनटू साइज ऑफ स्ट्रक्ट पर्सन. मतलब ये क्या करेगा, डायनेमिकली असाइन करेगा साइज ऑफ स्ट्रक्ट कितनी है. देखो साइज ऑफ स्ट्रक्ट पर्सन, पर्सन की साइज मतलब ये एक सेट हो गया, वैसे 2 इंटू साइज कितनी है इसकी 1 ना. सो फिर
इट विल क्रिएट 2 सेट्स फॉर दैट स्ट्रक्ट पर्सन। समझ में आ गया? मतलब एक बंदे का नाम लिख सकता हूँ मैं, एज वेल एज सेकेंड बंदे का भी नाम लिख सकता हूँ। नाम मतलब पर्सन की डिटेल्स, एज, वेट एंड नेम। क्लियर? ओके। अभी ये लाइन ने क्या किया, 2 सेट जनरेट कर दिए। अभी 2 सेट मुझे वो घुमाने हैं, ठीक है? उसके लिए मैंने फॉर लूप इम्प्लीमेंट किया। सो एंटर फर्स्ट नेम एज रिस्पेक्टिवली। हाँ, एंटर द फर्स्ट नेम एंड एज रिस्पेक्टिवली, ये लाइन प्रिंट होने वाला है। एंटर द फर्स्ट नेम एंड एज रिस्पेक्टिवली। ओके। अभी उन्होंने दिया देखो कमेंट दिए, 4 लाइन तो कमेंट ही है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो कमेंट पढ़ते क्या है, टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ फर्स्ट ट्रक पर्सन, मतलब ये अगर एक्सेस करना है मुझे, हाँ, पीटीआर नेम एंड पीटीआर एज इज यूज, ये हम लोग ने देखा है ऊपर, मतलब लास्ट लेक्चर में दिखा था कि ये ऑपरेटर से हम लोग कॉल कर सकते हैं। हाँ, टू एक्सेस मेंबर ऑफ सेकेंड पर्सन, अभी ये फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग डायरेक्टली करेंगे, बट इन केस ऑफ सेकेंड पर्सन वी डज व्हाट, वी डू दिस ptr+1. ptr+1 tells us that because we are using here malloc function, so ptr+1 tells us that now this ptr is used for the second scenario, the second set, okay, and ptr+1 is clear. so first के लिए हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे और सेकेंड के लिए +1 ऐड करके हम लोग डिस्प्ले करने वाले, ठीक है? सो सी हियर परसेंटेज एस और परसेंटेज डी हम लोग ने कॉल किया है ptr+i नेम एंड ptr+i एज। तो यहाँ पे वो सेकेंड टाइम पे 1 आने वाला है, इनिशियली तो वो 0 ही है, 0 और 1, क्योंकि 2 सेट है ना, 2 सेट है। छोटे दिखा आपला अपन, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 सेट हम लोग ने किए, आप लोग ने 3 किए, तो फिर वो 3 के लिए जनरेट होने वाला है, ठीक है? बाद में यहाँ पे 2 आएगा, मतलब और एक सेट आएगा ऐसे, वहां पे 2 आएगा, और एक सेट आएगा 3 आएगा, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ने 2 डाले हैं, तो 2 ही सेट के लिए वो जनरेट कर रहा है। क्लियर? ओके। सो परसेंटेज एस और परसेंटेज डी, परसेंटेज एस फॉर ये स्ट्रिंग एंड डी फॉर एज, ओके। एंड आफ्टर दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। सो देखो यहाँ पे नाम मैं एंटर कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम राइटिंग दिस स्कैन। सो नाम एंटर किया, हैरी उसने एंटर किया, और उसका एज किया एंटर 24। क्लियर? ओके। और जो मैंने एंटर किया है नाम इंफॉर्मेशन, वही मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखो हैरी, नेम हैरी, एज 24। क्लियर? ओके। यहाँ पे हम लोग ने और एक दिया, टू एलोकेट द मेमोरी फॉर ए नंबर ऑफ स्ट्रक्ट पर्सन वी यूज, जो फंक्शन यूज किया ना वो हम लोग ने यूज किया, जो हम लोग मैंने अब भी एक्सप्लेन किया। सो हियर ऑफिशियली वी आर डन विथ आवर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इन सी, PCI जो सब्जेक्ट है अपना, वो अपना ऑफिशियली खत्म हो गया। सारे चैप्टर्स हम लोग ने क्लियर कर लिए। वी आर डन विथ द ऑल कंसेप्ट। नाउ व्हाट? सो आई गेस I am sending you one assignment, 1 or 2 assignment, and I had sent you one assignment already. और मैंने चेक किए हैं मेल्स किसके आए हैं किसके नहीं आए हैं। डिपेंडिंग ऑन योर असाइनमेंट सबमिशन यू विल गेट मार्क्स, ठीक है? देर इज नो एंटरटेनमेंट सिनेरियो हियर। अगर आप लोग ने असाइनमेंट सबमिट किया है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आप लोग इंटरनल में फेल हो, या फिर आपको कम मार्क्स मिल सकते हैं। असाइनमेंट बोला है, WPD के लिए प्रोजेक्ट बोला है, जो कुछ भी हम लोग ग्रुप पे बोलते हैं, send that project work, send that assignment work on time to time, otherwise you will suffer. So ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट फैक्ट बोल रहा हूँ। और आगे भी ऐसे 2-3 असाइनमेंट में 1-2 असाइनमेंट दूंगा, एंड उसके बाद प्रोग्रामिंग इन, मतलब सी के लिए अगर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह है तो मैं बोलता हूँ वो क्या है वो, बट फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं है। MCQ है आपका, सो आई हाईली रिकमेंड अभी टाइम स्पेंड करो। जो प्रोग्रामिंग इन सी का अपना डेली का लेक्चर है, अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग के लेक्चर नहीं होंगे, मतलब रिवीजन होगा सिर्फ, जो ऑलरेडी हुआ है उसका ही रिवीजन होगा। सो ऑन दैट टाइम स्लॉट, ऑन दैट टाइम पीरियड, गो टू द गूगल एंड टाइप प्रोग्रामिंग इन सी MCQ प्रैक्टिस सैम्पल टेस्ट, ओके। एंड वो जो सैम्पल टेस्ट है वो देते रहो। अभी आपका सेकेंड ड्यूटी भी आएगा, और नेक्स्ट मंथ में आपका फाइनल एग्जाम भी है। सो प्रैक्टिस करो MCQs की, चैप्टर वाइज सर्च करो। सपोज की फर्स्ट चैप्टर है एरेज इन सी, सो यूज द प्रॉपर कीवर्ड एरेज इन सी, MCQ टेस्ट, सैम्पल टेस्ट, जो कुछ भी है वो गूगल पे सर्च करो। हाँ, यू विल गेट वन सैम्पल टेस्ट, एंड यू अवेयर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन एरे, इन फंक्शन, कैसे प्रोग्राम आता है, कैसे आउटपुट वो लोग पूछते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। सो एक आइडिया आएगा आपको, और ये आगे से आपकी प्रॉपर एग्जाम रहेगी। मतलब लास्ट सेम में जो आप लोग ने दिया था ऑनलाइन एग्जाम, दैट इज ऑल अबाउट द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। दीज आर योर actual subject like WPD, PCI,
BSc है, जो कुछ भी है वो, ठीक है। सो डोंट गेट स्टक ऑन दिस टॉपिक फॉर एवर, जस्ट एंजॉय योर प्रोसेस, study regularly, slow but steady, and you will get the appropriate result. ठीक है। सो आई होप की मैंने जो कुछ भी बोला है, जे मी काय सांगितलंय ते तुम्हाला कळालंय. अँड सबमिट युअर टास्क, सबमिट युअर असाइनमेंट्स, सबमिट युअर प्रोजेक्ट्स ऑन डेली बेसिस. ठीक आहे. थँक्यू.